Hello students, very good morning to all of you. Dear students of class 3rd, how are you all? Hope all are fine. Students, as well as you all know that we are taking the chapter 5 and the chapter name is It's Raining in Agambi. Means we are reading to this chapter, and Agambi, which is a small village of Karnataka, okay, and it is also in the hills of Western Ghats, okay, and sometimes it's called the Cherrapunji of South India, okay. So as well as we have explained about this chapter study about page number 57, 56 and 57, and today we have to read पेज नंबर 58. ठीक है, आज कौन सा चैप्टर हम लोग रीड करेंगे? 58 को रीड करेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक आउट योर बुक एंड टेक आउट दी पेज नंबर 58. ठीक है, पेज नंबर 58 सारे लोग अपने बुक में ओपन कर लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड टू दिस. ओके, माधव डिड दे लाइक RSS? ओके, ARS. Yes, what did they see? Geeta, they employed the trick. They enjoyed the trick. I had told them that Agambi is also known as Cobra capital, but they are difficult to find in the monsoon. So they were super excited to spot 2 cobras. My aunt said the forest was so green and soothing. She loves plant. Okay. She loves plant. Madhav, your aunt must have been very happy to see so many medicinal plants. Geeta, oh yes, she was also thrilled to see moss and ferns. Madhav, she liked moss. Moss is so irritating. It grows like weed everywhere. Geeta, she says that the moss and ferns on the roofs make the houses look very attractive. Okay, she is planning to collect ferns and herbal plants to take back to Bangalore. Mother, and what does your uncle say about our village? Geeta, move. Geeta, he finds it very peaceful and beautiful. We all went to the sunset point in the evening. They wanted to see the sun setting in the Arabian Sea, but we couldn't see it because it was so cloudy. Uncle kept on clicking pictures of the cloudy and foggy scenes. Okay students, now it was a reading work which we have done. So let's start to see the explanation of this. Madhav, did they like ARS? What did they see? मीन जैसे गीता ने एक्सप्लेन किया कि उनके कज़िन जो आए हुए हैं, उनके अंकल आंटी उनके कज़िन्स हैं, ठीक है, वो सारे लोग बेंगलोर से आए हुए हैं एंड दे आर जस्ट वॉकिंग टू दी पोर्ट Agambi village, and whatever things they have seen and they have told or explained, Geeta is telling about that to Madhav. Okay, तो माधव यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, डिड दे लाइक ARS? यहाँ पे ARS मीन्स मैंने आप लोग बताया ना, अगम्बी रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन जो कि वहाँ पे है. तो यहाँ माधव पूछ रहे हैं क्या उन लोगों ने उसको लाइक किया, उसको देखा? गीता बताती हैं दे इंजॉयड द ट्रेक, एंड देन गीता रिप्लाइड येस दे ऑल हैव इंजॉयड वेरी मच टू द ट्रेक. I had told them that Agambi is also known as Cobra capital. और इस तरह से गीता बताती हैं कि मैंने बताया उन लोग को कि हमारा जो अगम्बी विलेज है वो कोबरा कैपिटल के नेम से भी जाना जाता है. बट दे आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन द मानसून. और बट अभी ये जो कोबरा हैं वो अभी डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट they cannot find or they cannot see to these in the monsoon. मीन्स जो भी मानसून का भी सीज़न चल रहा है उसमें इन सारे कोबरास को देखना या पाना अभी क्या है, डिफ़िकल्ट है. हु इज़ टेलिंग? गीता इज़ टेलिंग टू दी कजिन्स.
सो दे वर सुपर एक्साइटेड टू स्पॉट 2 कोबराज। और इस तरह से उनके जो कजिन्स हैं गीता के, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कोबराज को देखने के लिए। माई आंट सेड द फॉरेस्ट वॉज सो ग्रीन एंड सूथिंग, शी लव्स प्लांट। और यहाँ पे गीता एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी जो आंट हैं वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में क्या एक्सप्लेन किया। नाउ हर आंट से, उनकी आंट कहती हैं कि जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन था, बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट थी, स्मूथिंग थी, एंड शी लव्स प्लांट एंड वॉट एवर प्लांटेशन वर देयर इन द फॉरेस्ट दैट वॉज लव बाय गीता's आंट। ठीक है ना, गीता की आंटी को बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आया, अच्छा लगा। माधव, योर आंट मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी मेडिसिनल प्लांट। अब यहाँ पे माधव क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं गीता से कि आपकी आंटी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होंगी ना, सो मेनी मेडिसिनल प्लांट, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट को देख करके। गीता, ओ येस, शी वॉज ऑल्सो थ्रिल्ड टू सी मॉस एंड फर्न्स। देन गीता सेड येस रियली शी वॉज वेरी हैप्पी। और वो मॉस एंड फर्न्स को देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा मॉस एंड फर्न्स के प्लांट्स को देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। माधव, सी लाइक मॉस एंड नाउ माधव इज आस्किंग क्वेश्चन, क्या उन्होंने मॉस को लाइक किया, पसंद किया। मॉस इज सो इरिटेटिंग एंड माधव सेड टू गीता, एक्चुअली मॉस इज सो इरिटेटिंग। मॉस जो प्लांट होती है बहुत ही इरिटेटिंग होती है। वाई माधव एक्सप्लेन हियर, इट ग्रोज लाइक वीड एवरीवेयर। मीनिंग ऑफ वीड, अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। मीन्स यहाँ पे माधव बता रहे हैं कि मॉस जो प्लांट होती है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती है वीट की तरह। मीन्स कहीं पर भी ये क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है एवरीवेयर। ओके। गीता, सी sees that the moss and ferns on the roof makes the houses look very attractive। और यहाँ पे गीता बताती हैं कि उनकी जो आंटी है वो क्या कहती हैं, हर आंटी सेज, उनकी आंटी कहती हैं कि मॉस एंड जो फर्न्स हैं वो क्या करती हैं, रूफ मीन्स रूफ जो होती हैं हाउसेज की, जो घरों की जो छतें होती हैं उसको और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मीन्स जब रूफ पे, हाउसेज के रूफ पे मॉस जो प्लांट्स होती है वो क्या आ जाते हैं तो उससे जो हाउस है और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लुक करने लगता है, दिखने लगता है। ठीक है। और यहाँ देखिए, सी इज़ प्लानिंग टू कलेक्ट फॉन्स एंड हर्बल प्लांट्स टू टेक बैक टू बेंगलोर। और इस तरह से गीता की आंटी सी इज़ ऑल्सो, वो प्लानिंग कर रही हैं क्या, व्हाट, फॉन्स एंड हर्बल प्लांट्स यहाँ पे हैं अगम्बी में, उसको कलेक्ट करके अपने साथ वो बेंगलोर ले जाएंगी। ओके, एंड शी विल ऑल्सो ग्रो टू दैट प्लांट, ओके, इन हर होम। माधव, एंड व्हाट डज योर अंकल से अबाउट आवर विलेज। और यहाँ पे माधव देन क्वेश्चन आस्क करते हैं, ओके नाउ यू टोल्ड अबाउट योर आंटी, आपने अपने आंटी के बारे में बताया, वॉट एवर थिंग्स have been happened with your auntie, now tell me about your uncle। ओके, आपके अंकल के बारे में बताइए कि आपके अंकल ने हमारे विलेज के बारे में क्या कहा। ओके, स्टार्ट। Geeta, he finds it very peaceful। Then Geeta explained, yes, my uncle also like to this place and he finds इट्स वेरी पीसफुल। और मीन्स इन मेरे जो अंकल हैं उनको ये जो क्या है, ये जो प्लेस है बहुत ही पीसफुल लगी, मीन्स बहुत ही शांति लगी, एंड ब्यूटीफुल, और अच्छी भी लगी, ब्यूटीफुल लगी, सुंदर लगी। वी ऑल वेंट टू द सनसेट पॉइंट इन द इवनिंग। और हम सब क्या किए थे, हम सब इवनिंग के टाइम सनसेट पॉइंट के पास भी गए थे। They wanted to see the sun setting in the Arabian Sea। क्योंकि हमारे जो कजिन्स थे लाइक अंकल आंटी, वो लोग क्या चाहते थे, अरेबियन सी में सन की सेटिंग को देखना चाहते थे कि कैसे उसकी सेटिंग होती है और वो कैसा दिखता है। बट वी कुडंट सी, बट हम नहीं देख सके, हम सी नहीं कर सके। वाई? बिकॉज इट वॉज सो क्लाउडी। Because when we reached there was so cloudy, there was so much cloud where in the sky, वहाँ पे स्काई में बहुत सारे क्लाउड थे, बहुत सारे बादल थे। अंकल केप्ट ऑन क्लिकिंग पिक्चर्स। और इस तरह से अंकल जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारी पिक्चर्स को, क्लाउडी स्काई को
क्या किया, उसकी पिक्चर क्लिक कर ली ऑफ द क्लाउडी एंड फॉगी सीन, जो कि क्लाउडी थी और फॉगी सीन थी, उन सारी फॉगी सीन की स्काई में, ठीक है ना, जो भी स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने, मेरे अंकल ने क्या किया, उसकी पिक्चर क्लिक कर ली, क्या की, उसकी पिक्चर क्लिक कर ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट वाज पेज नंबर 58, ठीक है, ये आपके पेज नंबर 58 का एक्सप्लेनेशन था। होप स्टूडेंट्स आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। ओके, और आप देख रहे हैं कि आपके इनसाइडेड में वर्ड मीनिंग्स हैं, इन सारे वर्ड मीनिंग्स को आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आपको हार्ड वर्ड्स दिखेंगे, इन सारे हार्ड वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे और इस पेज नंबर को भी अच्छे से रीड करेंगे, एंड यू विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड this page number, and now you have one more remaining pages which we will explain on the next day, but आप लोग उसको read कर लेंगे अच्छे से, okay, then I will explain that one. Okay students, now start your work. Now thank you, have a good day.